Cricket is my passion and I cannot avoid it. Hello and welcome to another episode of Cricket Unplugged with Anis Sajan. Today I have a very versatile guest. He has 32 years of experience as a reporter, writer, anchor, host, covered major events, Olympics, Commonwealth Games, Asian Games, and also World Cups. Have worked with Reuters as a staffer, Jung Group, GeoTV, and whatnot. And also, he has a YouTube channel by the name of Cricket Bars. You all know whom I'm talking about. Assalamu alaikum and welcome, Wahid Bhai. Walaikum assalam, Anis. How are you? कैसे हैं आप? And thank you very much for inviting me for this discussion. और मजा आएगा आज जरा आपसे बात करके क्योंकि I like to interact with people who are passionate about cricket. क्योंकि आपको different aspects भी पता चलती है क्योंकि हम तो एक प्रोफेशनल नजर से देखते हैं ना चीजों को लेकिन एक जो क्रिकेट का पैशनेट फॉलोअर होता है उसका भी बड़ी यूनिक इनसाइट होती है टू द गेम एंड आई लव टू हियर दैट Well, the pleasure is all mine, Wahid Bhai. To be very honest, as I mentioned to you off air, I have been following you. And what I like about you, which I told you, is that the analysis what you make about a cricket game and non-controversial analysis. You talk cricket and you talk sense. That's the way it should be. Absolutely. लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली कंट्रोवर्सीज भी बड़ी दिखती है क्या करें Well, that's adding spice to cricket, you can say it. Exactly. Anyway, पहले मुझे ये बताइए कि ये आपका जो शो का नाम है क्रिकेट बाज, ये कैसे पड़ा? यार अब मैं आपको सच बताता हूँ अनीस के दाल तो दिया लेकिन अब मुझे सेकंड थॉट्स आते हैं कि यार इसको चेंज करना चाहिए बट नाउ सिंस इट्स बिकम सो मतलब पीपल नो अबाउट इट सो आई हैव डबल माइंडेड नाउ कब चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए लेकिन मेरा एक दोस्त था उसने बेसिकली ये सजेस्ट किया था तो उस पर मैं इतना इस पर जोर नहीं दिया मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं क्रिकेट बाज कर लेते हैं लेकिन बहरहाल चले क्रिकेट बाज ही सही No, but it sounds good to the ears, you see. Okay, that's good to hear. And you, mashallah, having experience of almost 32 years. So, yes. So I would like to ask you, what made you get into as a reporter? To be honest, Anis, I think it was my passion for sports. Like, if I'm like honest here, I was very passionate about cricket from the days I was. जब से होश संभाला है, ये समझना कि जब से होश संभाला है, तो cricket तो मतलब हमारी जिंदगी थी. तो cricket and then other sports like hockey and all. So I think it was a natural thing कि जब मैंने sports में इतना passion था, plus मुझे reading का बहुत passion था. तो हालांकि no one in my family has been in journalism. अब मेरी बेटी माशाल्लाह से शी इज इन जर्नलिज्म बट आई वाज द फर्स्ट इन माय फैमिली एंड आई थिंक इट वाज अ नेचुरल प्रोग्रेशन के स्पोर्ट्स में इतना पैशन है तो फिर क्यों ना जर्नलिज्म में चला जाया जाए एंड आई हैव एंजॉयड इट तो मैं अगर इफ आई पुट इट दिस वे अनीस के इससे ज्यादा कोई मांग नहीं सकता नो वन कैन आस्क फॉर एनीथिंग मोर बिकॉज if your what is your passion if that is also your livelihood so and your profession then what more can you ask for from Allah so I think I'm very lucky that I've been able to follow my passion for cricket and also do journalism and even in journalism I've been very lucky to have worked in major organizations and like working in Reuters was a great experience because Reuters obviously is one of the top wire services and news services in the world. So it's been a great journey. It's been a fantastic journey, and the biggest thing is that आप ये देखें अनीस के आज भी at 55 I'm still as passionate about cricket, as emotional about Pakistan cricket as I was, say 35 years back. Mashallah. I mean, two things I need to answer for what you have said. First of all, like you mentioned, you are able to live your passion, and that is very important. Exactly. And secondly, you said 55 years. Mind you, I thought you are a little more senior, but you don't look 55. The maturity, what you carry, that is, I can see it very clearly, and on your views, what you say. It's. I think the biggest plus for me has been because I've been around in journalism for 32 years. I've worked in different mediums. So that experience over the years, it matters for a lot. And Anis, I think you know this in any profession, there's no shortcut. I mean, the experience that you gain over the years,
nothing can replace that. So I think that matters a lot, and that is why I think. I think I don't know, but I feel I'm in a position where I can speak with some authority on cricket matters and cricket issues. बिल्कुल सही फरमाया, किसी ने सही कहा है कि experience is better than knowledge, and with experience you learn the nitty gritty of things and how you go about it. Exactly. तो हम शुरू करते, वहीद भाई, सबसे पहला सवाल, अभी अभी गरम जो है इंडिया इंग्लैंड सीरीज कल ही खत्म हुई है। राधा इनफैक्ट मैं आपका शो डॉक्टर नोमान साहब के साथ भी सुन रहा था कि अहमदाबाद वाले बनिया है, 5 दिन में दो टेस्ट मैच पूरा कर दिया। लेकिन मैंने डॉक्टर को कहा, मैंने कहा वो तो नुकसान हो गया उल्टा मैंने 10 दिन का टेस्ट जो है 5 दिन में निपटा दिया, वो तो उनका उल्टा ब्रॉडकास्टर्स वगैरह का नुकसान हो गया उनका तो काफी। सही है। So my first question regarding this, you see England started off very well after coming on the back of 2-0 win against Sri Lanka. Then they beat a confident India side after the Australia series. Then what do you think suddenly went wrong with English team? I think very simply, Anis, overconfidence. I think they were too complacent after the first test. See, the most important thing is that if you're playing in a series where a place in the final of the World Test Championship is at stake, you're playing against a team which has not lost at home for the last 8 years. You can't take that series, you can't treat that series like any normal series. To me, this rotation policy employed by the English management, it made no sense to me for this series. I'm all for it. I can understand that COVID-19 के जो हालात है, players need a break and all that. That's fine. But it made no sense to me कि Johnny Bairstow को आप श्रीलंका में खिला रहे हैं. He's done so well then Sri Lanka. फिर आप उसको भेज देते हैं घर, फिर आप उसको एक टेस्ट के बाद बुला लेते हैं. जॉस बटलर को आप you send him back after one test. So I think the selection policy, this rotation policy employed by the English management, it didn't work. And to me, the bottom line is this: why does a national team play a test series? To win it, obviously. So the English management, the English cricket board now has to decide. To me, it's very simple. They have to decide now how much emphasis and importance are they going to give to this rotation policy for players, this break for players, over winning matches, over doing well in test matches, because these two things can't run concurrently like the way they have tried in this series. You can have a rotation policy, but to my mind, like Josh Butler, for example, Josh Butler should have played all the 4 test matches. आप उसको बाद में break दे देते, कोई issue नहीं था. He could have been rested for the Sri Lanka series. ऐसा कोई issue नहीं था. So I think they just need to revisit their rotation policy and selection policy, because some of the selections for this series in this series was horrible. Matlab, it made no logical cricketing sense at all to drop Dom Bess after just one test match. Then you bring him back after 2 test matches. He's not that experienced. और हमें फिर नजर आया इस टेस्ट में कि he was short on confidence. साफ सीधी बात है. So I think Test cricket is the hardest format of cricket, and England just didn't take it seriously enough this series. To me, that is why they lost. And plus, obviously, they don't have those quality spinners that India had. And after losing the first test, I don't blame India at all. I don't blame Kohli. I don't blame Shastri. Any home side will try to use home advantage, and they did that. वो ठीक है, कभी-कभार ये हो जाता है अनीस के जो क्यूरेटर होता है, जो कप्तान होता है, वो जो पिच बनाने की सोच रहे होते हैं, कभी-कभार उनकी मर्जी के खिलाफ भी पिच बन जाती है, उनको भी नहीं पता होता है कि इतनी टर्न करेगी. तो I think that is what happened in one of the test matches which finished in 2 days. But otherwise, I thought that India employed the right tactics, and they exploited England's I think below par spin bowling, plus they also exploited the fact that England की selection सही नहीं थी. और दूसरा अगर आप देखें इंडिया को सबसे बड़ा advantage अनीस I think ये है कि they have got such experience, they've got such a fantastic spinner in Ashwin कि कमाल bowler है यार वो. मतलब the way he's bowling now, I think he's at the prime of his career. He made a huge difference. Plus, with the second player to make more players who made a difference were Rohit Sharma and Rishabh Pant. Pant ne to jis tarah se, I tell you, the way he has matured in the last few months, kamal hai yaar. I'm totally impressed with this guy, the way he has played in this series. His cheerfulness, his chirpiness, his energy that he brings on the field while batting, while keeping, it's fantastic. It's fantastic for any team, I tell you.
आपने बहुत सही फरमाया. Like first thing what you said, England did not take this series seriously with their Exactly. rotation policy में थोड़ा stubborn हो गए कि जॉनी बेस्टो को भेज दिया after he did well in Sri Lanka, जॉस बटलर को वापस भेज दिया, and then the guy, the spinner who did well in the first test match, उसको बिठा के उसका confidence low किया. Absolutely spot on, Wahid bhai, and that's why I believe your analysis is absolutely perfect. And second point, like they are not giving priority to the good series. Like we know that you to beat India is not that easy in their hometown. So rather you would rest players in a weaker series and make sure that your full squad is there. Like they've taken it for the T20, they have a solid stride coming up. Exactly. That is what I'm a bit surprised because like this was not just a series. This was also a series, Anis, where they could have made the World Test Championship final. I mean, India till the last test was not sure of going into the final because even after winning 2 test matches, they still had to either draw or win the last test to go into the final. So I think England squandered a great opportunity. I get this feeling somewhere that maybe this year, because it's the World T20 year, they're more focused on white ball cricket. I get this feeling they're more focused on white ball cricket, and at times hota hai कि cricket boards have their priorities, team managements have their priorities, captains have their priorities. So maybe the priority right now is white ball cricket, but whatever their priority, they messed up royally in this series, and India took full advantage of it. And even if you look at India's performance, Anis, I mean, you take out Rohit Sharma, Rishabh Pant, Sundar, maybe Ashwin. Baki in India की batting नहीं चली. They also struggled, throughout the series. So it was obvious that it was not going to be easy in the series. But like I told you, England ने selection में ज़्यादा blunders कर दिए, बहुत ज़्यादा. I mean, I think third test था, हाँ third test में they went in with 4 pace bowlers on a spin wicket and playing just one spinner. It made no difference. It made no sense at all. Very true, Wahid bhai. And I was hearing yesterday Nasser Hussain, Michael Arthur, and Robert Key, and the analysis where they were talking about that in England, for them the pinnacle is the Ashes. Yeah, like you are judged, a player is judged if you perform well in the Ashes or you don't perform well in the Ashes. And obviously, they were saying that Morgan probably has got his squad, whereas Root did not get it. But nonetheless, like you mentioned, India, in spite of not getting runs from the top order, like Virat not able to score, Pujara not able to score, and the opening batsman Shubman Gill, pairing Rohit Sharma as a batsman, even Rahane ek 50 agar hata de. So the batting order not able to deliver. India still managed to win one test match by 10 wickets, then one by 325 runs, and the last one by an innings and 25. So what would you say that? First of all, Anis, I'd like to definitely comment on this. कि ये जो Nasser Hussain ने जो बात की है. Look, I think these guys need to understand now that the days of the Ashes being the pinnacle of all the cricket is over. It's not the same now. आप सिर्फ जो है ब्रॉडकास्टिंग जो रेवेन्यू आता है सीरीज से वो उठा के देख लें कि एशेज से कितना रेवेन्यू कमा रहा है इसीलिए, या how much are they earning from playing against India at home or other countries at home, they'll get a clear answer. नहीं, if this is the mentality, then I'm sorry. I mean, if they're living just on the Ashes के जी Ashes हमने जीतना बस काफी है, तो फिर तो ऐसी क्रिकेट नहीं खेली जाती. लेकिन देखें इंडिया का Anis, the biggest plus point for them right now, the best thing going for them is that over the years जो मेहनत की गई है in the background to develop this bench strength, that is now paying dividends, and the bench strength that they have is simply awesome. I mean, no other country can boast of such bench strength that they have. आप सिर्फ सोचें हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हाल था इंडिया का, कितने की प्लेयर्स मिसिंग थे, ठीक है. आप सिर्फ सोचें कि अभी यहाँ पर इस सीरीज में कितने की प्लेयर्स मिसिंग है. बुमराह नॉट प्लेइंग, शामी नॉट प्लेइंग, हार्दिक पांड्या नॉट बीइंग सेलेक्टेड, केएल राहुल नॉट बीइंग सेलेक्टेड, मयंक अग्रवाल. उसके बाद भी जो है अगर इंडिया इतना आराम से जीत सकता है तो आई थिंक इंडिया डजंट नीड टू वरी अबाउट द फैक्ट कि कोहली. अच्छा, कोहली का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये होती है. आई रिमेम्बर जब बॉडी लाइन सीरीज हुई थी तो Don Bradman was at the peak of his career, so England went with this Lavard and this bodyline tactics. And they said after the series, we managed to control Bradman because he failed in the series. And Bradman's batting average in the series was 50 plus.
तो बात ये होती है कि जब प्लेयर बहुत बड़ा हो जाता है ना, जैसे कोहली हो गया है, तो वो बेचारा अगर 100 नहीं करेगा तो लोग कहेंगे यार ये फेल हो गया. ऐसा नहीं था. He got two good 50s and very important 50s. So I think India doesn't need to worry about anything. They've got a fantastic talent pool for all formats. It's just now about how sensibly you handle that pool. And I think they've handled very well. And I'll be upfront here, Anish, के जो ये व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स आ रहे हैं अभी, वर्ल्ड T20, चाहे इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, फिर 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है 2023 में. If India doesn't win this year's World Cup, World T20, let's start with this year's World Cup. I would be totally surprised if they can't do that. क्योंकि अगर आप इस टैलेंट के साथ, इस पूल के साथ अगर आप नहीं जीत सकते तो भाई फिर आप कभी नहीं जीत सकते. मैं बता रहा हूँ. They have got such a fantastic मतलब choice of players right now. To me, I would be amazed if they can't win this World T20. I'll come to the point of T20 World Cup, which is happening in October. But you mentioned about the bench strength which India had. Now, why do you see this bench strength which India has developed? What according to you, is this bench strength which has been developed in India? You look at it this way, they have followed a very good system. I think what has happened is they had a blueprint, a very clear blueprint developed by the former players, जिसमें Dravid, Venksankar वगैरह का बहुत बड़ा हाथ है. The blueprint is very simple. They see a young player at the junior level. Either they bring him into some franchise in the IPL or they take him to the national academy. Under 19 खिलाते हैं, उसके बाद they make sure that he plays a lot of matches for the Indian A team. When you're playing for the India right now, in the last 10 years, India has played the most A team matches than any other country. That I think is the key to the success. A team में खिला के they mature that player. Then they, at the same time, concurrently, he's playing in the IPL. He's getting the exposure with playing alongside, rubbing shoulders with big players, with his own senior players. So by the time Anis, he comes into the Indian team, he's ready for the challenge. Examples आपके सामने हैं. ऑस्ट्रेलिया में जब सुंदर को लाया गया तो there were a lot of, I was one of those who felt कि नहीं यार कुलदीप यादव का बनता था खेलना तीसरे टेस्ट में, आप क्यों खिला रहे हो वॉशिंगटन सुंदर को. he is a T20 player, but he proved with his batting alone that his selection was right. उसके बाद आप दूसरे प्लेयर को, शार्दुल ठाकुर को लेके आए. just he is known as a T20 स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेता है, बैटिंग कर लेता है, that's it. वो बंदा टेस्ट में रन्स कर रहा है, वो बंदा टेस्ट में विकेटें ले रहा है. इट जस्ट शोज द लेवल ऑफ जो इन्होंने ग्रूम करके तैयार किया अपने प्लेयर्स को. दैट सिराज इज अनदर एग्जांपल. कोई बॉलर आई हैव सीन, बड़े बड़े बॉलर अनीस आई हैव सीन कि इवन वसीम अकरम और वकार जब पहली दफा गए ऑस्ट्रेलिया, दे स्ट्रगल टू एडजस्ट टू द कंडीशंस देयर. This guy goes to Australia and he takes to the condition so easily because he's played for the Indian A team. He's been to Australia, he's been to New Zealand, he's been to England, South Africa. That is the key to the success. That is why the bench strength is so good now, because they have given the required exposure to the bench strength. और मजे की बात ये है अनीस के अभी ये जो bench strength है इनका, जो हम देख रहे हैं अभी, जो ये 8-10 प्लेयर्स हैं, इसके अलावा एक थर्ड टायर ये तैयार कर रहे हैं अभी इस वक्त, जो कि उसमें भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, जो कि मे बी इन द नेक्स्ट 4-5 years we'll see those players also. Next 2-3 years we'll see those players. So I think India's blueprint has worked wonderfully well, and other boards need to learn how important it is to have regular tools of your A teams, क्योंकि A team से प्लेयर बनता है और वहां से जो है आपका प्लेयर जो है फिर वो तैयार होकर आता है. प्लस फिर आईपीएल का होना इज सच अ बिग बूस्ट. फाइनेंशियली एक प्लेयर सिक्योर, जो प्लेयर आईपीएल में आता है फाइनेंशियली ही इज सिक्योर, एंड सेकंड व्हेन ही इज प्लेइंग अलोंगसाइड विद सो मेनी टॉप प्लेयर्स ही लर्न सच अ लॉट अंडर द टॉप कोचेस एंड ऑल. सो आई थिंक इंडिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है, इट इज डाउन टू अ ब्लूप्रिंट which has taken a number of years to produce results, but now it's producing results. Well, the youngsters who are listening to this show from India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, I mean, I'm speaking about on the Asian front because what Wahid Bhai has analyzed, and he's spot on, that India's A-team development has been very strong. The platform what they're getting by playing first-class games. So by the time they come and play Test cricket, they are, matured. उनकी temperament अच्छी हो जाती है, and it cannot be bigger than playing first-class games. You become matured as a player. And then he mentioned about IPL. Obviously, IPL is the T20 format, but rubbing shoulders with the big boys, and financially you are taken care of. So इससे बेहतर चीज और कुछ नहीं हो सकती है. And Anis, I'll add here. देखिए, IPL का फायदा ये होता है जिससे PSL का भी फायदा होता है.
फॉर आवर प्लेयर्स आल्सो, इसका एक फायदा ये होता है कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एक मतलब रिस्ट स्पिनर है, ही वाज सिलेक्टेड फॉर द ऑस्ट्रेलियन टूर आल्सो बट देन ही वाज ड्रॉप्ड, बट नाउ ही इज इन द टी20 साइड, चक्रवर्ती, द वे ही इज बोल्ड इन द आईपीएल प्रेशर सिचुएशन में, जिस तरह उसने बॉलिंग किया है, तो बड़े बड़े बैट्समैनों को बॉलिंग किया है मतलब वहां पर आईपीएल में। अब आप मुझे बताएं कि जब वो इंडियन टीम में आएगा और जब वो खेलेगा किसी टीम से, उस पर कोई प्रेशर होगा? कोई प्रेशर नहीं होगा, बिकॉज ही इज ऑलरेडी बीन थ्रू दैट प्रोसेस, ही इज बोल्ड टू अ प्लेयर लाइक एबी डिविलियर्स एंड स्टीव स्मिथ एंड ऑल दोस गाइस, तो फिर उसको क्या प्रेशर उसने फील करना है? दिस इज द की, यू नो, आई मीन इंडियन बोर्ड ने जो कमाल किया है वो ये किया है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जी हम आईपीएल बस प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लेयर, ना ना ना, they took the IPL and then they paid equal importance to the first class cricket A teams. That is how they have developed their talent. You have to give equal importance to both your league and your first class structure as well. Very true, Wahid bhai, spot on. Now my next question, I want to again rub on the England team. Like initially when they won the first test match in Chennai, which was a wicket where a couple of days nothing happened, Root went down to score a double hundred and they scored 500, and it was a convincing victory with Anderson bowling beautifully in the second innings. But in the second test, third test, and unfortunately I'm glad they did not mention about the pitch in the fourth test. So, and you also mentioned that home team has an advantage and they should take advantage of making wickets according to it. But now, don't you think that you've seen the West Indies era, you've seen the Australian eras, those cricketers, rather those teams were teams which were winning in any conditions? Exactly me. देखिए अनीस, अभी कल रात को ऐसा 10 ओवर मैंने देखे जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का टी20 हो रहा था आखिरी। अब वहां पर विलिंगटन में बिकॉज ऑफ कोविड-19 दे हैड टू शिफ्ट द मैचेस फ्रॉम ऑकलैंड, वहां वुमेन्स भी हो रही है क्रिकेट भी, उनकी उस पिच पे हो रही है और मेंस की भी हो रही है। तो एक पिच पे दे हैव प्लेड अराउंड 3 मैचेस इन 4 डेज, ठीक है, स्लो पिच है, स्पिन भी ग्रिप कर रहा था, सब हो रहा था। आपने कंप्लेंट सुने वहां से कि नहीं जी ये यहाँ बहुत स्पिन कर रहा है? नहीं, आई मीन एज प्रोफेशनल्स टू मी दिस इज नाउ, कोई टीम अगर ये कहे कि जी ये सीमिंग विकेट थी और ये स्पिन विकेट थी, मतलब मैं बिल्कुल इसको टोटली आई रिजेक्टेड, बिकॉज as professionals, well-paid professionals, you are supposed to perform on every pitch. You have a professional setup in the team, you have a professional coach, support staff. किस लिए है भाई वो एनालिस्ट? किस लिए बैठाया हुआ आपने? इसलिए बैठाया हुआ ना कि वो आपको बताएगा पहले सीरीज से पहले कि यार ये पिच ऐसे खेलेगी, वी शुड एक्सपेक्ट दिस, वी शुड एक्सपेक्ट दैट। तो ये तो इंग्लैंड के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं इनकी पुरानी आदत है, मतलब रोना गाना करना। पाकिस्तान जब इनको रिवर्स स्विंग तो मारता था तो मतलब आपको पता ही क्या होता था कि जी बॉल टेम्परिंग होती ही होती है। अब वही रिवर्स स्विंग जो है आर्ट बन गया, तो इट्स जस्ट नॉट ऑन टू मी, इट वाज जस्ट लाइक यू नो। अब चौथे टेस्ट तक आके क्यों चुप बैठ गए, पिच के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए क्योंकि आप हर वक्त तो ये बहाना नहीं दे सकते ना कि पिच खराब थी। एक दफा हार गए, 2 दफा हार गए, 3 दफा हार गए, तो भाई उसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग समवेयर विद योर टीम, नॉट विद द पिच। यस, द पिच वाज वेरी डिमांडिंग, इसमें कोई शक नहीं, एट टाइम्स बहुत ज्यादा स्पिन हो रहा था, बट देन यू आर सपोज्ड टू प्ले ऑन दिस पिचेस। आई मीन टेस्ट क्रिकेट का मतलब क्या है? टेस्ट का मतलब ये है कि यू आर सपोज्ड टू बी टेस्टेड ऑन डिफरेंट सर्फेसेस एंड इन डिफरेंट कंडीशंस। तो आई थिंक इंग्लैंड का ये जो पिचेस पे वो था कंप्लेंट थी, इट वाज टोटली हॉगवॉश एंड और बिल्कुल इंडिया को राइट है। अभी इंडिया अगर इंग्लैंड जाएगा या जब ऑस्ट्रेलिया गया था या कोई भी कंट्री हो, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आया, अभी डिड साउथ अफ्रीका कंप्लेन कि नहीं जी वो कराची में पिच ऐसी थी या पिंडी में ऐसी थी? नहीं, यू हैव टू प्ले द सॉर्ट ऑफ, जो भी आपको पिच दी जाती है आपको प्ले करना। जैसा भी किसी ने बड़ा अच्छा कहा, रोहित ने कहा, अश्विन ने कहा, रोहित ने शायद कहा था कि ठीक है फिर आप आईसीसी कहेंगे जी स्टैंडर्ड पिचेस बना ले सारी कंट्रीज में, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड पिचेस बनाएंगे तो फिर टेस्ट क्रिकेट का मजा रहेगा? आप मुझे बताएं। ऑलरेडी वी हैव सीन के टी20 क्रिकेट में सीधी पिचेस की वजह से कितना एट टाइम्स यू फील यू नो लाइक इट गेट्स सो टायरसम जस्ट वाचिंग द सेम थिंग अगेन अगेन, छक्के पड़ रहे हैं, चौके पड़ रहे हैं, बेचारा बॉलर जो है वो कल क्या मैच, कल उस बंदे ने पैट कमिंस बैठा हुआ था, अनीस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड ही मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट यस्टरडे व्हेन ड्यूरिंग द मैच, मैं सुन रहा था, उस पिच पे बात हुई तो उसने कहा उसको कैसे बोलते हैं उसके साथ हेडन बैठा था, ब्रैड हेडन बैठा हुआ था, तो he told him, he said कि it's good कि ये पिच जो है थोड़ा स्पिन ले रही है, क्योंकि टी20 का मतलब जरा मजा आएगा देखने का कि कैसे कंपटीशन होता है, टीमें कैसे जीतती है ऐसी पिच पे टी20 जहां बॉल थोड़ा टर्न हो रहा है, थोड़ा बॉलर्स को ज्यादा हेल्प मिल रहा है। तो आई थिंक दैट इज द थिंग कि आपको मजा क्रिकेट का यही है कि अगर आपने सीधी सीधे विकेट हर जगह बनानी तो फिर तो बेकार है। इंग्लैंड वर लकी कि दे वन द टॉस इन द फर्स्ट टेस्ट चेन्नई, दे प्लेड वेरी वेल, नो डाउट अबाउट इट, कि देखें
चेस तो आपने कर लिए, लेकिन बॉलिंग भी आपको अच्छी करनी थी, उन्होंने की, लेकिन आई जस्ट फेल्ट के उसके बाद दे टुक थिंग्स वेरी लाइटली, दैट्स इट, दैट्स द ओनली रीजन दे लॉस्ट. इफ दे हैड मतलब pursued the series with the same what do you call it agenda that we want to win the series, they could have done well even in the other test matches. True. If I've you look, heard you. बल्कि अनीस, sorry to interrupt you, if you look at this remaining test matches, 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि England had chances to catch up with India, but they didn't catch up. In fact, I was going to ask you the same thing that Ravi Shastri rather mentioned, that the score line looks 3-1, but this, it was not like 3-1. It was moments which England did not grab and India grabbed it. Exactly. वो जो तीसरा टेस्ट था जिसमें इंग्लैंड ने आउट कर दिया जल्दी फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया को 145 करके, उसके बाद जल्दी आउट किया. अब 81 पे आप आउट हो रहे हो सेकंड इनिंग में, तो भाई उसमें क्या कसूर है मुझे बता दें, फिर वो किसका कसूर है? आई मीन कैसी भी पिच हो यार, 81 पे तो कोई टॉप लेवल की टीम आउट नहीं होती. और आप शॉट देखें, सम ऑफ द शॉट दैट द बैट्समैन प्लेड, आई मीन दे हैड नो क्लू कि किस तरह टैकल. अश्विन ने जो है ना, इनको सही मानों में वो मतलब चले, अक्सर तो ऐसा बॉलर है कि मोस्ट ऑफ आई थिंक कि जहां टर्न नहीं होगा उसको कम चांस मिलेंगे, लेकिन अश्विन ने तो इनको रॉयली जो है, ही मेड अ मंकी आउट ऑफ देम. दे डिडंट नो व्हेन हिज बॉल वाज गोइंग स्ट्रेट ऑन, दे डिडंट नो व्हेन टू स्पिन. मतलब आप सारी डिसमिसल्स की देख ले, दे वर प्लेइंग फॉर द स्पिन, और वो सीधी अपनी बॉल करता था, विकेट ले लेता था. True. मैंने आपको सुना है पंत के बारे में, आप पंत के बड़े फैन हैं. थोड़ा बताइए हमारे गेस्ट को कि क्या आपको पंत के बारे में पसंद है. यार अनीस, मुझे उसकी जो सबसे अच्छी चीज लगती है ना, ही एंजॉयज क्रिकेट. सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, जो चीज आप करते हैं ना, वो आपको एंजॉय करना चाहिए. इस क्योंकि होता है लाइफ में कि यू गेट, ये जो हम सुनते हैं, जैसे अब हम मोइन अली का सुनते हैं या और प्लेयर्स का सुनते हैं कि जी वो बेचारा, अभी जैसे क्विंटन डिकॉक का हुआ है कि जी वो मेंटली बड़ा टायर्ड हो गया, फटीग हो गया, तो जी वो वापस घर जा रहा है रेस्ट करने के लिए, ब्रेक ले रहा है, ये ले रहा है. ये बंदा एंजॉय करता है क्रिकेट को. एंड आई थिंक जो सबसे अच्छी चीज ये है कि he's been through a lot. Matlab, he has faced the disappointments of being in and out of the team, of having question raised all the time कि क्या ये खेलता है, क्या वर्धमान साहा खेलता है, क्या जो है इससे पहले कार्तिक खेलता था. Like he was never sure of his place, in out. अच्छा, दूसरा क्योंकि है थोड़ा सा जरा मतलब कैरेक्टर है, तो वो खुद भी बाज नहीं आता था मुझे. मैं उसको देखता था तो मुझे अपना उमर अकमल भी याद आता था कि वो ही इम्पिटियस किस्म के शॉट्स खेलना, और मतलब ऐसी सिचुएशन में आउट होना जाके, यू शुड नेवर गेट आउट. But I think from the Australian tour onwards, he's matured. He's matured a lot. और उसने अपना बिल्कुल उसको अंदाजा हो गया है कि मेरे पास कितना टैलेंट है, उसको अंदाजा हो गया है कि मेरा कितना बड़ा दिल है. और सबसे बड़ी बात ये, I think now he has learned how to use that, utilize that talent. You see, the interesting thing is कि जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया से उसने रन करना शुरू किए, वैसे वैसे उसकी कीपिंग तक बेहतर होना शुरू हो गई है. तो आई थिंक ही इज अ, मतलब. और फिर दूसरी बात जो उसकी मुझे अच्छी लगती है, वो ये लगती है कि वो जिस सिचुएशन में आता है खेलने के लिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई. वो उसने अपने तरीके से खेलना है. वो he doesn't, like, you know, he's not overawed by the situation. तो मैं बड़ा उसका फैन. To me, I think he's going to be one of the greats of Indian cricket. Maybe it will be too early to say this, but I see him as becoming one of the greats of Indian cricket. सारी उसमें चीजें हैं. और मतलब जिस तरह से यार उस बंदी की एनर्जी कमाल है अलीस, मतलब वो पूरे दिन लगा रहता है क्रिकेट के पीछे, उसके बाद आगे फिर बैटिंग में धुलाई कर देता है बॉलर्स की. कमाल कैरेक्टर. आई मीन फैंटास्टिक फाइंड फॉर इंडिया. एंड आई थिंक इंडिया इज वेरी लकी कि इतना अच्छा उनको मतलब कैरेक्टर मिला. हमारे वहां भी रिजवान है, मोहम्मद रिजवान इज देयर, ही इज डूइंग वेल. But I don't know why. For some reason, I see that passion and that energy missing in Rizwan. Maybe because at the back of the mind, he knows कि यार अगर मैं 2 मैच में फेल होता हूँ तो मेरी जगह पक्की नहीं है. But confidence, मतलब supreme confidence उस बंदे का यार. Confidence की बात की है, and we are talking about Rishabh Pant. We all know he was getting a lot of flack for his fitness, for his keeping, and we also remember that Manchester में जो सेमीफाइनल इंडिया न्यूजीलैंड से हारा था, तो एक शॉट खेला था तो विराट कोहली गुस्से से चले पड़े थे अपने कोच के पास. So इतना प्रेशर आने के बाद एक प्लेयर अपने आप को बिल्ड कैसे मेंटली कर लेता है? बिकॉज यू नो द होल वर्ल्ड से ये पंत को क्यों लिया है, या पंत काम का नहीं है, XYZ. यू नो वी एज फैंस वी प्रोबब्ली प्रेस द ट्रिगर. एंड उसके बारे में ये कहा है कि ही इज बीन वेरी टैलेंटेड. सौरव गांगुली ऑलवेज सेज मैंने ऐसा टैलेंट देखा नहीं है. रिकी पॉन्टिंग ने कहा है, तो डेफिनेटली इस बंदे में है. बट जैसे आपने उमर अकमल का एग्जांपल दिया, और अब हम पंत की बात करते, तो वो प्लेयर इवॉल्व होने के पीछे किसका हाथ होता है? आई थिंक देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट,
कि आपका कोई ना कोई मेंटोर जरूर होता है. देयर समवन ऑलवेज इन द बैकग्राउंड जिसकी आप सुनते हैं, जो आपको समझाता है. एंड एट बिकम्स अ स्टेज. देखें, एक अच्छे प्लेयर में, एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन में, अब फॉर एग्जांपल एक प्लेयर टैलेंटेड है, उसको पता है, हम सबको पता है वो टैलेंटेड है, लेकिन द की इज नोइंग हाउ टू यूज योर टैलेंट. आई मीन बीइंग गिविंग रिस्पेक्ट टू दैट टैलेंट. अगर आप अपने टैलेंट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर आप बड़ी ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ. उमर अकमल का जो मैं मिसाल देता हूँ इसलिए देता हूँ कि आई टेल यू, अनीस इज सो सुप्रीमली टैलेंटेड. मैंने उससे अच्छा बैट्समैन अभी भी नहीं देखा इसमें करंटली, उससे अच्छा बैट्समैन नहीं है, बट वो रिस्पेक्ट नहीं करता अपने टैलेंट को. व्हेन आई से रिस्पेक्ट योर टैलेंट, आई मीन कि जब आप जाए खेलने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैं इतना टैलेंटेड हूं कि आई कैन अचीव द इम्पॉसिबल. आपको पता होना चाहिए कि मैं जब जाऊं खेलने के लिए, मेरी टीम मुझ पर रिलाई कर रही है, मेरे टैलेंट पर रिलाई कर रही है, मैंने अपनी चीजों को कर्व करना है और सिचुएशन के हिसाब से खेलना है. ऋषभ पंत आई थिंक हैज फाउंड दैट की. आई डोंट नो किसी ने उसको समझाया, पीछे कोई इसका मेंटोर है, क्या है, बट आई थिंक के बिकॉज ही इज सो टैलेंटेड, that is why he was able to handle the pressure also. I was one of those guys early on जो बड़ा I used to always say कि यार he needs to cut down on his weight, he needs to understand. मतलब क्रिकेटिंग अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए किस सिचुएशन में आपने कौन सा शॉट खेलना है, कैसे खेलना है. जरूरी नहीं होता अनीस के एक बंदे को पता होता है कि यार मैं छक्का मार सकता हूँ इस बॉलर को, लेकिन आप फिर सोचते हैं कि नहीं यार ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, क्योंकि अगर 1% भी ये शॉट मेरा गलत गया तो मेरी टीम सफर करेगी, तो आई विल होल्ड द शॉट फॉर द नेक्स्ट ओवर और द ओवर आफ्टर दैट. आई थिंक दैट इज द की टू हिज सक्सेस. आई थिंक कि सारा क्रिटिसिज्म उसने इसलिए कैसे बोलते हैं अब्जॉर्व कर लिया कि एक तो ही इज पैशनेट, ही इज वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट, एंड सेकेंडली ही नोज ही इज टैलेंटेड. जब एक बंदे को पता होता है ना वो जब टैलेंटेड है. ब्रायन लारा आप देख लें यार, ब्रायन लारा, गैरी सोबर्स, बड़ी मिसाल है. ये बड़े बड़े ऐसे प्लेयर्स थे कि जो मैं एक जगह किताब में पढ़ रहा था सॉरी, सलीम दुरानी एक प्लेयर हुआ करते थे इंडिया के. आई वाज रीडिंग समवेयर कि ही वाज सो टैलेंटेड, ही कुड डू एनीथिंग. हमारे वसीम राजा होते थे कि दे वर नेवर, आई मीन वो कन्वेंशनल टाइप के लोग नहीं थे, दे वर ऑलवेज कुछ डिफरेंट. ऋषभ पंत मुझे ऐसे नजर आता है, लेकिन आई थिंक अब ऋषभ पंत को जो है ना, ही इज फाउंड द की. उसको समझ आ गया है कि मेरा टैलेंट है, अब मैंने कैसे इस टैलेंट को जो है प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है. प्रेशर उसके लिए कोई इशू नहीं है. मतलब यार जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में आके सिडनी टेस्ट में, ब्रिस्बेन टेस्ट में वो इनिंग्स खेल सकता है, कमाल इनिंग्स थी वो दोनों. आई मीन आप तो वैसी प्रेशर से कोई बंदा मतलब वो हो जाए कि यार मैं क्या कर सकता हूँ. तो आई थिंक ही हिज टैलेंट इज द की. He has withstood this pressure because of his talent, because he knows I can achieve these things. और जब आपको मेंटर अच्छा मिल जाए, कोई आपको गाइड करने वाला अच्छा मिल जाए, शास्त्री का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक आई सी शास्त्री's रोल वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शास्त्री was one of those guys, if you remember, who kept on supporting him all along. मतलब जब इसको क्रिटिसिज्म भी होता था तो शास्त्री इसको बहुत सपोर्ट करता था. एंड आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई नाउ ही इज मतलब मैच्योर्ड इनटू अ वेरी गुड प्लेयर. आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि टैलेंट के साथ गेम अवेयरनेस डेवलप करना बहुत जरूरी है कि बिकॉज यू नो व्हेन यू आर लाइक ऋषभ पंत और यू आर लाइक अ फ्लैम्बॉयंट प्लेयर, यू लिव बाय द स्वॉर्ड, यू डाई बाय द स्वॉर्ड. एग्जैक्टली. अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं. मैंने वसीम राजा को खेला देखते हुए खेला, अब खेलते हुए देखा. He was so talented that he could ball with a new ball, fantastic fielder, good batsman, leg spinner, everything. लेकिन ये टैलेंटेड लोगों में ये प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा. मैं इसको हमेशा कहता हूँ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट टाइप का, कि थोड़े से एसेंट्रिक होते हैं, अपनी मर्जी से करेंगे हर चीज. जब मूड होगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लें. लेकिन ऋषभ पंत, आई थिंक जो ऋषभ पंत का केस है, आई थिंक ही नाउ हैज बिकम मोर प्रोफेशनल इन द सेंस कि उसको पता है कि एसेंट्रिक होना अच्छी बात है, उसको पता है कि टैलेंटेड होना अच्छी बात है, उसको पता है कि लाइफ को एंजॉय करना अच्छी बात है. बट आई थिंक नाउ ही इज रियलाइज आल्सो द फैक्ट कि भाई कंपटीशन इतना है इंडियन क्रिकेट में कि अगर मैंने अपने टैलेंट के साथ ज्यादती की तो मैं नहीं रह सकता फिर ज्यादा दिन इस इंडियन टीम में. तो आई थिंक द वेरी फैक्ट कि कंपटीशन भी इतना है इंडियन टीम में कि उसको पता है कि मतलब अब जो है वो वाला सीन नहीं है कि सिर्फ मैं हूं तो ठीक है मैं जैसे चाहूं परफॉर्म कर लूं. देयर इज नो थ्रेट टू माय प्लेस. ही नोज इट नाउ हिमसेल्फ एंड ही इज ऑलरेडी बीन थ्रू इट. उसको पता है कि अब कंपटीशन इतना है. दैट इज व्हाई आई थिंक ही इज मैच्योर्ड सो क्विकली नाउ ओवर द कोर्स ऑफ 2 सीरीज. And mind you, he was replacing MS Dhoni, the legend, so it was not easy. Exactly, not easy at all. Not easy at all. But I tell you one thing, Anis, the range of strokes that this guy has is it's not the range of strokes. It's the fact that he's willing to play them and against any bowler. उसने ऑस्ट्रेलिया में भी जिस तरह से उसने पैट कमिंस वगैरह को उसने मतलब धुनाई की है, मतलब कमाल था यार.
he's a special talent. मैं बोलता हूँ he's a very special talent and he needs to I hope he's realized that, क्योंकि कभी बार ये होता है कि जिन players जो के पास talent होता है ना वो realize नहीं करते इस चीज को कि हम कितने talented है. So I think I just hope he's realized that, because he could be one hell of a player for India. बड़े कल ही बल्कि ये बात हुई थी, मैंने कल डॉक्टर नुमाना से पूछा कि धोनी, आप देखते हैं इसको, I mean reaching near Dhoni. He said he could be better than Dhoni, and I agree with that. I agree with that. Well, that is going to be big shoes to fill in. We have to wait and watch, because when you have played three series defining innings, one in Sydney, one in Gabba, and one in the last test in Ahmedabad. So people have that expectation. So there will be time when we'll play that shot and he will get out. And that is where, as you said, the management has to back him. Exactly. देखिए हमारे वहाँ नहीं सही होता है, पाकिस्तान इंडिया का मतलब इवन हमारे साउथ एशिया में कल्चर है, चाहे वो मीडिया हो चाहे क्रिकेट फैंस हो, we tend to expect too much from our players. We don't tend to realize कि यार एक बंदे का बैड पैच भी आएगा. ये नेचुरल लॉ ऑफ एवरेजेस है क्रिकेट की, कि एक बंदे ने अगर 6 इनिंग्स अच्छी की है तो अब उसकी 2-3 इनिंग्स खराब होनी है. तो दैट इज द टाइम वेयर यू हैव टू रियलाइज, एंड आई थिंक दैट इज वेयर इंडिया हैज डन वेल इन द सेंस के दे आर बैकिंग द प्लेयर्स. अगर आप देखें तो इनिशियली पुजारा भी रन नहीं कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उसने फिर जब रन करना शुरू किए तो ही प्लेड अ की रोल इन इंडियाज विक्ट्री. तो आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली यानी मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेयर्स एस्टैब्लिश हो चुके होते हैं, जो खेल चुके होते हैं काफी, आपको उनको बैक करना चाहिए. इसलिए क्योंकि मैं वही बात रिपीट करूंगा कि एक्सपीरियंस ऐसे नहीं आता क्रिकेट में. आप 50 मैच का एक्सपीरियंस ऐसे नहीं ला सकते आराम से. वो 50 मैच खेला हुआ जो बंदा होता है ना, उसने बहुत कुछ देखा हुआ होता है. तो अगर उसके 4 मैच बुरे जा रहे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं. 5 मैच भी बुरे जा रहे हैं, कोई मसला नहीं. ही हैज टू बी बैक, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड अ रेडीमेड रिप्लेसमेंट फॉर हिम. स्पॉट ऑन वहीद भाई. अभी हम टैलेंट की बात कर रहे हैं, इंडिया की टैलेंट की बात की है, एंड आई हैड हर्ड इमरान खान साहब ने कहा था कि पाकिस्तान में भी वही टैलेंट है, इट जस्ट नीड्स टू बी नरिश्ड प्रॉपर्ली. नाउ आप मुझे बताएं, what has happened to Pakistan cricket when in the 90s they were so dominating, when Waseems and the Waqars and Moin Khan, I mean मुझे एक भी player ऐसा याद नहीं है who was a liability, everybody was an asset. And suddenly after that it has taken a downhill. इंजमाम की बात करना मैं भूल गया, माशाल्लाह एक से बढ़कर एक प्लेयर थे, और एक ऐसा टाइम था कि पाकिस्तान को हराना इंडिया के लिए इट वाज लाइक क्लाइंबिंग अ स्टीप लैडर. तो अब क्या हो गया ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट को? व्हाट डू यू थिंक इज लैकिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट? See, I'll be brutally honest here. मैं कहूँ नहीं, देखें, I've been very lucky कि I covered cricket सारे टूर्स तकरीबन मैंने किए 90s में, early 2000 में. तो I saw all these players up close. इनका जो डिफाइनिंग फैक्टर था ना, वसीम, वकार, सईद, all these guys, इनका एक डिफाइनिंग फैक्टर ये था, आमिर, सोहेल, they were supremely self confident. सेल्फ बिलीव बहुत था इनके अंदर. मतलब ये ऐसे थे कि इंडिया से मैच जिससे भी जब इनका दिन होता था तो they were very confident. अब मसला ये हुआ आपका कि अब आई मीन आई एम नॉट belittling anyone, लेकिन मुझे ये फील आती है, आई थिंक के ये जो हमारे वहाँ स्पॉट फिक्सिंग के जो इंसिडेंट्स हुए एक दो, इससे बहुत फर्क पड़ा हमारी क्रिकेट को, बहुत मतलब डचका पड़ा. दूसरा ये जो 2009 के बाद हमारे टूर्स खत्म हुए, टीमों ने आना छोड़ दिया, इसकी वजह से बहुत हमारा टैलेंट जो है ग्रोथ स्टंट हुई. इसलिए क्योंकि पीपल डोंट रियलाइज दिस, पीपल ओनली लुक एट इट दिस वे कि जी अब इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान नहीं जा रही. नहीं, इट वाज नॉट दैट. पाकिस्तान ऑल्सो सफर्ड इन द सेंस कि जो अंडर 19 ए टीम्स हमारे टूर होते थे वो बंद हो गए. इसलिए क्योंकि अब आप यूएई में खेल रहे थे तो ये ए टीम्स और जो अंडर 19 ए टीम्स से टूर होते हैं, ये रेसिप्रोकल बेसिस पे होता है. अगर आप जा रहे हैं साउथ अफ्रीका खेलने के लिए 6 मैचेस, तो फिर आपको भी होस्ट करना है साउथ अफ्रीका को 6 मैचेस, क्योंकि इट्स नॉट अ मनी मेकिंग वेंचर, इट्स बेसिकली दोनों बोर्ड्स के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग होती है. अब मसला ये आ रहा था कि पाकिस्तान तो चला गया साउथ अफ्रीका 6 मैच खेलने के लिए. अब साउथ अफ्रीका क्या है कि जी 6 मैच अब हम भी खेलेंगे आके, तो दे वर नॉट विलिंग टू कम टू पाकिस्तान. तो कहाँ आपने खेलना है? आपने यूएई में खेलना है. तो यूएई में कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को. सो फॉर 10 years our A team tours were totally hit very badly. मजे की बात आप देखें कि ये जो अभी जो पिछला जनरेशन था प्लेयर्स का, उमर अकमल, वहाब रियाज, इमाद वसीम, अहमद शहजाद, ऑल दीज गाइज, नवाज एंड ऑल, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो लास्ट पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के ए टीम का टूर हुआ था, ये सब उसमें थे, उस टीम में थे. दिस इज हाउ पाकिस्तान क्रिकेट वाज इम्पैक्टेड. तो ये 2-3 फैक्टर्स बहुत इफेक्ट हुआ है पाकिस्तान को, खास करके स्पॉट फिक्सिंग वाला जो इंसिडेंट हुआ था 2010 में. In 2010 I felt Pakistan had the players. Now Pakistan was ready कि they'll go up, अब नेक्स्ट लेवल पे हमने जाना है.
लेकिन मतलब जब वो स्पॉट फिक्सिंग हुआ तो उसके बाद यू लॉस्ट आमिर, यू लॉस्ट आसिफ, टू ग्रेट बॉलर्स, फैंटास्टिक बॉलर्स, यू लॉस्ट अ वेरी गुड कैप्टन इन सलमान बट, मतलब सलमान बट आइडियल बंदा था आपको अगले 10 साल के लिए लीड करने के लिए, वो गया। उसके बाद फिर आपका दानिश कनेरिया गया स्पॉट फिक्सिंग में, अगेन वेरी एक्सपीरियंस, यू लॉस्ट हिम 2-3 इयर्स अर्लियर देन बिफोर हिज रिटायरमेंट। तो ये जो 4-5 प्लेयर्स गए ना, इससे बहुत फर्क पड़ा पाकिस्तान को। उस पर फिर हुआ ये कि मिसबाह कप्तान बना, एक्सीडेंटल कैप्टन था, तो ऑब्वियसली बात है कि यार वो यूए में खेल खेल के ही डेवलप दिस साइकी, कि बस जीतना है तो डिफेंस बस लो विकेट, हाँ स्लो विकेट बनाओ, लो विकेट बनाओ, स्पिनर से जीत तो खत्म करो। तो डेवलपमेंट हुई नहीं ना आपके प्लेयर्स की। और फिर जो बॉटम लाइन है वो ये है कि हम टैलेंट उतना, सीधी सी बात है, वी आर नॉट गेटिंग दैट टैलेंट दैट वी वर गेटिंग से 20 years बैक। और जो मिल भी रहा है ना अनीस, उसको हम सही नहीं, मतलब कोई हमारे प्रोग्राम में नहीं उसके लिए। हम टैलेंट को लाते हैं, हम उसको वेस्ट कर देते हैं। लास्ट फ्यू इयर्स में, लास्ट 10 years में आप उठा के देखें, यू विल बी शॉक। मैंने भी एक फ्यू डेज बैक एक शो किया था जिसमें मैंने बताया था कि कितने प्लेयर्स 2010 से ऐसे हैं पाकिस्तान के जो एक एक टेस्ट खेल के फारिग हो। कोई 18-20 पेस बॉलर्स हमने इस्तेमाल किए हैं सिंस 2010, ऑफ whom only 2 or 3 have played more than 20 टेस्ट मैचेस। तो आप इससे अंदाजा करें हम कैसे हम टैलेंट को वेस्ट करते हैं। तो वी वेस्ट टैलेंट। अब्दुल्ला शफीक इज अ की, अभी आपके सामने एग्जांपल है। आप उसको लेके आए ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर जस्ट वन फर्स्ट क्लास मैच, वन T20 मैच, कि जी ये बड़ा अमेजिंग टैलेंट है, न्यूजीलैंड ले गए, वो फेल हुआ बेचारा, उसके बाद आपने उसको फारिग कर दिया बिल्कुल। सो दिस इज हाउ वी वेस्ट टैलेंट। इट्स नॉट दैट वी डोंट हैव टैलेंट, वी हैव टैलेंट, but unfortunately the people who are supposed to manage this talent have not managed talent properly। और दूसरी चीज, मैं बिल्कुल यहाँ पर एक दो फाइनल जो चीज मुझे फील होती है फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मुझे कभी यार ये लगता है अनीस के कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप में जिनके लिए पर्सनल ईगोज ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अदर देन नेशनल टीम इंटरेस्ट या पाकिस्तान क्रिकेट इंटरेस्ट। उससे क्या नुकसान होता है कि पर्सनल ईगो से नुकसान ये होता है कि मुझे ये मेरे मतलब शहर का बंदा है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ये मेरे ग्रुप का बंदा है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, मेरे दोस्त ने मुझे फोन करके कह दिया कि यार इसको जरा देख ले तो मैं उसको देखूंगा, मुझे इस बंदे की शक्ल पसंद नहीं है, इसने मुझे सलाम नहीं किया इसलिए मैं इसको नहीं खिलाऊंगा। ये प्रॉब्लम बहुत है। आई डिड इंटरव्यू विद डेव वॉटमोर, I think some few years back, 4-5 years back, in fact 7-8 years back when he was head coach, and he made a very interesting comment in that interview. He told me when I was at Jio Super, he said that the biggest problem I see with this Pakistan team is that there is no nationalism in this team. There is provincialism in this team. That is a very telling statement coming from a foreign coach. कि provincialism is taking precedence over nationalism। ये आपका प्रॉब्लम हमारे पास इन क्रिकेट का रहा है। टैलेंट की कमी नहीं है बिल्कुल भी, टैलेंट को आप जब सही इस्तेमाल करेंगे, ग्रूम करेंगे तो वो अच्छा करेगा। लेकिन जब आप सिलेक्शन में, टैलेंट की नशरिंग में, ग्रूमिंग में, जब आप ईगोस को लेके आएंगे, जब आप पर्सनल विम्स एंड फैंसीज पे काम करेंगे, हमारी अंडर 19 लेवल पे ये बहुत होता है। नो वन लाइक्स टू क्रिटिसाइज हिज ओन कंट्री और हिज ओन क्रिकेट, लेकिन जो फैक्ट है फैक्ट है। आज अगर हम नहीं है चैंपियंस, अगर आज हम टॉप पे नहीं बैठे हैं, उसकी वजह यही है। आप देखें सरफराज को जो हटाया गया, आई मीन सीधी सी बात मैं करता हूँ, क्या कोई लॉजिक बनता था उसको, तो उसको इस तरह से डम करना? आपने एक बंदे को जिसने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ था, सब था, आप व्हाइट बॉल में उसको रख लेते, ठीक है, आप उसको टेस्ट से हटा देते। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट पाकिस्तान क्रिकेट के जो मसले हैं। लेकिन बॉटम लाइन ये, टैलेंट अभी भी है हमारे पास, क्योंकि आज भी बहुत क्रिकेट खेली जाती है पाकिस्तान में। आज भी क्रिकेट नंबर 1 स्पोर्ट्स है, बच्चा बच्चा क्रिकेट खेलने को तैयार है। मसला सिर्फ ये है कि हमने वो सिस्टम बनाना है और वो लोग लेके आने हैं जो ऑनेस्टली अबव एवरीथिंग वो ये देखें कि ये टैलेंट जो है पाकिस्तान के लिए कितना काम आ सकता है, तो फिर आपकी चीजें इंप्रूव होंगी, वरना नहीं इंप्रूव होती यहाँ पर। बिल्कुल सही फरमाया वहीद भाई आपने। अभी आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट गॉट सफर्ड बिकॉज ऑफ द स्पॉट्स फिक्सिंग which happened in UK and where you lost big players like Amir, Asif, Salman Butt. Now, don't you feel financially the players are not rewarded well in the domestic cricket? इस पे कोई एक नजर नहीं मारनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल ये प्रॉब्लम है कि इसलिए कि हमारे वहाँ सालों साल से डिपार्टमेंट का सिस्टम रहा है ना अनीस। तो होता ये था कि सारे प्लेयर जो है तकरीबन, एक बार एक प्लेयर मतलब एस्टेब्लिश हो गया तो उसको डिपार्टमेंट साइन ऑन कर लेते थे, तो उसकी नौकरी हो जाती थी। वाज ओके, ठीक है यार, कि मतलब अच्छी मुझे जॉब मिली हुई है, बेनिफिट से सब कुछ है। लेकिन अब ये सिस्टम चेंज हुआ है 2 साल पहले। अब टोटल बोर्ड देख रहा है, स्पॉन्सरशिप वगैरह कर रहे हैं, तो अब थोड़े पैसे बढ़ाए तो है, बट स्टिल नॉट एनीवेयर नियर द अदर कंट्रीज। और ये एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम रहा है, इसलिए क्योंकि एक जो मेन रीजन रहा है हमारे वहाँ डोमेस्टिक में पैसे ना मिलने का प्लेयर्स को ज्यादा, कि हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को खुद रिस्पेक्ट नहीं देते, साफ सीधी बात।
हमने खुद अपनी कभी डोमेस्टिक क्रिकेट को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जितनी हमें देनी चाहिए थी। इसीलिए ये जो है वाइल्ड सिलेक्शंस होते हैं 2 मैचेस बाद या 3 मैचेस बाद। मैं हमेशा एक बात करता हूँ अनीस, आई ऑलवेज से दिस कि देखें, बात ये कि क्या कभी आप एक बच्चे को क्लास 1 से क्लास 10 में डायरेक्ट भेजते हैं? क्यों नहीं भेजते? आप इसलिए नहीं भेजते बिकॉज वो 1 से 10th में जाके वो 10th के माहौल में वो पढ़ाई में वो मतलब हो ही नहीं सकता। क्या आप एक एमबीबीएस डॉक्टर को क्या डायरेक्ट आप सर्जन बना देंगे? उसको क्या ऑपरेटिंग थिएटर में भेजेंगे? नहीं। Why should be in different be different in cricket? ठीक है, टैलेंट की बात अपनी जगह, लेकिन ये जिस तरह से नसीम शाह, हारिस रऊफ वगैरह को आप एकदम से ऊपर लेके आ जाते हैं, क्यों भाई? आप जब इनको इस तरह से लेके आते हैं, क्या ये वैल्यू करेंगे पाकिस्तान कैप को? मुझे बताएं आप। विल दे वैल्यू व्हाट इट इज टू प्ले फॉर पाकिस्तान? नहीं करेंगे वैल्यू कभी भी पाकिस्तान, क्योंकि इजी तरीके से वो सीधे टीम के अंदर आ गए। बस ठीक है, जब तक खेल रहे हैं मजे कर लो, लीग खेल लो, खत्म कर लो। I think the key is to make the players realize कि जिस प्लेयर को आप पाकिस्तान टीम में लेके आए उसको पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या है पाकिस्तान कैप की और कितनी मुश्किलों से मैं इस टीम में आया हूं। तो फिर आप देखें कैसे नहीं वो परफॉर्म करेगा, कैसे नहीं वो अपनी जान मारेगा और कैसे नहीं वो लंबे अरसे के लिए खेलेगा। आप डोंट डी वैल्यू द पाकिस्तान कैप। ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा डी वैल्यू हुआ है, जिसकी वजह से हम डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जो है हम सफर कर रहे हैं। हमारे स्टैंडर्ड्स नहीं है वो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो होने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप खुद रिस्पेक्ट नहीं कर रहे अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को, तो जाहिर सी बात है फिर किसी ने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, नहीं इसके पैसा लाया जाए, स्पॉन्सरशिप लाई जाए और प्लेयर्स को ज्यादा पैसा दिया जाए। वेल, आपके इंट्रोडक्शन में आपने सही कहा था कि यू टॉक हार्ड फैक्ट्स एंड यू हैव रियली पुट अप इन राइट वर्ड्स जो भी आपने कहा अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। अब पाकिस्तान ने बहुत मेहनत करके और बहुत मेहनत करके इंटरनेशनल क्रिकेट लाया था पाकिस्तान में। वी सॉ इट स्टार्टेड विद द जिम्बाब्वे टूर और फिर अभी साउथ अफ्रीका आया, पीएसएल शुरू हो गया था। अब अनफॉर्चुनेटली बायोसेक्योर ब्रीच हुआ, उसके बाद ये पीएसएल पोस्टपोन हो गया। डू यू थिंक इट इज गोइंग टू हिट द इंटरनेशनल टूर्स व्हिच वर सपोज्ड टू हैपन, ऑस्ट्रेलिया कमिंग, इंग्लैंड? विल दे नॉट हैव सेकंड डाउट्स अबाउट कमिंग टू पाकिस्तान नाउ? They might have doubts, but I don't think it's not a situation which cannot be damage control नहीं हो सकता। बिल्कुल आप कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन को। लेकिन बात वही आती है, जिसके देखें सीधी बात है, मैं बड़ी एक सिंपल बात करता हूँ कि मसला ये है कि अगर मैं बैठ के इतना कभी कभार हार्ड हो रहा होता हूँ या हार्शली क्रिटिसाइज कर रहा होता हूँ, उसकी वजह बड़ी सिंपल है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट फॉर सो मेनी इयर्स, अब मुझसे ज्यादा किसी को दुख नहीं हो सकता कि अगर मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान टीम को हारते हुए, या अगर मैं जैसे ओलंपिक्स में गया हूँ मेरी हॉकी टीम जो है अच्छी होते हुए सेमीफाइनल हार जाए, तो बहुत उसका कोई नो वन कैन अंडरस्टैंड द पेन यू फील एट दैट टाइम। दैट इज व्हाई आई एम सो पैशनेट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। मैं कहता हूं आप अच्छा काम करो, हम बैठे हैं तारीफ करने के लिए। आप गलत काम करोगे तो हम पॉइंट आउट करेंगे। आप सुनो या ना सुनो, हमारा काम, आई डोंट केयर व्हाट एनीवन थिंक्स। बात यह है कि ये जो पीएसएल का अब जो आपने ये इतना बड़ा मतलब बंद हुआ है, आप आज अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज आई है कि जी 2 टॉप, एक डॉक्टर फैसल महमूद है जो गवर्नमेंट के भी कोविड-19 के वो है फ्रंटमैन है, और एक और को डॉक्टर सलमा मसूद है। इनकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है कि क्या हुआ पीएसएल में, क्या ब्रीच हुआ, क्या नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज हम पोजीशन फेस कर रहे हैं। अब मुझे आप बताएं कि जिस बोर्ड में, मतलब आई एम नथिंग अगेंस्ट कि आप कितनी सैलरी ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट आई वांट टू नो कि जिस बोर्ड में मानी साहब जैसा एक्सपीरियंस आदमी बैठा हुआ हो, वसीम खान जैसे बंदे बैठे हुए हो जो कि इतना मतलब एक्सपीरियंस रखते हो एडमिनिस्ट्रेशन का, how could this have happened? How could they allow this to happen? What happened in the PSL? मतलब आप, I tell you, अनीस के डे 1 से ब्रीचेस थे। डे 1 से हमें नजर आ रहा था कि गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि it was so obvious on the ground in the team hotel. You could see कि things were not going right. How could the Pakistan Cricket Board take this so lightly? मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। मैं तो बिल्कुल मतलब हैरान हूं कि यार आपने इतनी मेहनत की टीम्स को लाने में, अपना डोमेस्टिक सीजन आपने कराया। अब बिफोर दिस पीएसएल 6 अदर कंट्रीज वर लुकिंग एट पाकिस्तान एज एग्जांपल कि यार इस कोविड-19 में पाकिस्तान ने इतनी क्रिकेट कराई है। अब क्या पाकिस्तान का एग्जांपल है? वो आईसीसी कह रहा है कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट ने कहाँ गड़बड़ मारी है, तो आप मुझसे सीखेंगे कि वर्ल्ड T20 में ना हो। ये होता है फिर आपके साथ, जब आप लाइटली लेते हैं चीजों को, अनप्रोफेशनली हैंडल करते हैं, तो फिर ये होता है आपके साथ। इसका फॉलो आउट हो रहा है
और इसके फॉलो आउट आप फील करेंगे, बट आई स्टिल फील कि ऐसा नहीं है कि इट्स इररिपेयरेबल सिचुएशन, इट कैन बी रिपेयर्ड, बट नाउ अब बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर। और सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू हैव दिस PSL कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल। चाहे आपको कोई अपनी इंटरनेशनल सीरीज ड्रॉप करनी पड़े, चाहे आपको थोड़े से कोई फॉरेन प्लेयर्स कम बुलाने पड़े, बट द सूनर यू रैप दिस अप द बेटर। क्योंकि अब जैसी जो बातें कर रहे हैं मई में कराने की, बेकार। मई में आप IPL के साथ क्लैश करके आपको यू डू नो सर्विस टू PSL, साफ सीधी बात है। तो आई थिंक दे जस्ट नीड टू लर्न फ्रॉम व्हाट देम अभी, और क्या कह सकते हैं, जस्ट लर्न फ्रॉम व्हाट यू हैव डन। और अब जो ये बातें कर रहे हैं कि जी हम आउटसोर्स करेंगे चीजों को, 10 दिन का क्वारंटाइन होगा और सेपरेट होटल रखेंगे, मैं यही कहता हूँ, मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूँ कि भाई ये पहले करने में क्या प्रॉब्लम थी, अब क्यों ख्याल आ रहा है करने में। तो लेट्स होप दैट द गवर्नमेंट आल्सो टेक्स नोटिस एंड द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आल्सो कुछ इसको अब थोड़ा सा सीखे और ऐसा आगे ना हो, क्योंकि बहुत डैमेज हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को और बहुत साफ को नुकसान पहुंचा है। और like from a Pakistani point of view, from a Pakistani perspective, I'm totally disappointed and sad about what happened, क्योंकि बड़ा बुरा एक इमेज गया आपका और बड़ा एक गलत मैसेज कन्वे हुआ है। And mind you, the PSL was heating up with the scores being chased down 180, 90. The matches was played at highest quality, and unfortunately, this had to happen. Because laxity थी ना, Anis, there was total laxity on part of the Pakistan Cricket Board, franchises and everyone, all the stakeholders. बहुत lax attitude था। मतलब I don't know, शायद ये समझ गए थे कि ये COVID-19 खत्म हो गया पाकिस्तान में। लेकिन अब आप देखें, ये पेंडेमिक ऐसी चीज है, ये वायरस ऐसी चीज है कि यू डोंट नो, नो वन इज सर्टेन अबाउट कि क्या होने वाला है। अब ऑल ऑफ अ सडन लास्ट 2 डेज से आप देखें पाकिस्तान में स्पाइक हुआ है। आज भी मैं पढ़ रहा था कि 50% केसेस में इंक्रीज हुआ है। तो यू कांट टेक दिस लाइटली एट ऑल। अगर आपने क्रिकेट करानी है COVID-19 टाइम्स में अगले 2 साल, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड टू मी, आई यू आस्क मी अनीस, मैं साफ सीधी बात करूं, मैं कहता हूँ ये क्राउड बोर्ड आप ना अलाउ करें खुदा के लिए। आप मीडिया वालों को भी अलाउ ना करें प्लीज। आप सिर्फ मैचेस करा दें बस, बहुत है। आप टीमों को बुला लें ग्राउंड पे, उनको सिक्योर रखें, मैचेस को, ऑफिशियल्स को, ब्रॉडकास्टर्स आपके सेफ रहे, मैचेस लाइव। आप दुनिया मतलब इतनी ग्लोबलाइजेशन हो चुकी है कि मैच हम देख सकते हैं। मतलब टिम्बकटू में मैच हो रहा था तो हम लाइव देख रहे होते हैं, तो कोई मसला नहीं है। मैचेस लाइव आ रहे हैं, आप बोर्ड्स का काम चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, प्लेयर्स को पैसे मिल रहे हैं, क्रिकेट चल रही है, दैट्स ऑल फॉर द नेक्स्ट 2 years, दैट शुड बी इनफ। मुझे बड़ा डर लग रहा है ये जो बातें होती है ना, 50% क्राउड अलाउ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इट्स टू डेंजरस टू मी, इट्स वेरी डेंजरस। बिकॉज जब आपको एक चीज के बारे में सही मालूमात नहीं है, आपको नहीं पता क्या हो सकता है, तो इट्स बेटर टू बी वेरी केयरफुल। तो आई वुड मतलब मेरा एक तो बड़ा क्लियर राय है PCB के लिए कि भाई आप जब भी आप PSL कराते हैं, खुदा के लिए क्राउड वोर्ड का चक्कर ना करें। ना आपको जरूरत है मीडिया को भी बुलाने की, मीडिया घर से बैठ के कवर कर लेगा, कोई मसला नहीं है, वर्चुअली कवर कर लेगा, लेकिन जस्ट हैव द मैचेस सेफ एंड सिक्योर, दैट्स ऑल, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। We hope better sense prevails and they have learned a hard lesson and they will do the damage control sooner than later. Well, it's up now. Just before we wind up, you mentioned about the T20 World Cup and you believe that it is India's tournament to lose. First, let me come to Sarfraz Ahmed, like which you mentioned. Like, T20 is such an unpredictable format. And, to win 11 series in a row, don't you think it was hard done by the PCB? अनीश देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं एक बात करूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं करूंगा, लेकिन आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल एग्री दिस, बट आई डोंट थिंक नाउ T20 क्रिकेट इज any more unpredictable. नहीं, अब T20 क्रिकेट इज नाउ बड़ा प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया जा सकता है। सबको पता होता है क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये जो अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर जो आता है ना, ये बॉलर्स जब गलत बॉलिंग करते हैं, गंदी बॉलिंग करते हैं, प्लान से नहीं करते, या कप्तान गलत डिसीजन लेता है, तो ये आपको फील होता है अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर आ रहा है। लेकिन कमिंग बैक टू सरफराज, आई थिंक यस ही वाज हार्ड डन एंड आई वाज वन ऑफ दोस पीपल। मैं जब शो कर रहा था GTV पे चैनल पे, तो मैं आई वाज वन ऑफ दोस पीपल हु वर सेइंग कि यार देखो, ये 3 कप्तानी का जो फॉर्मेट्स की जो कप्तानी का बोझ है, सरफराज नहीं हैंडल कर पा रहा है, लेट हिम रिलीज हिम फ्रॉम द टेस्ट टीम, लेट हिम रिमेन कैप्टन ऑफ द व्हाइट बॉल। अच्छा कर रहा है व्हाइट बॉल में, ठीक है, उसको रहने दो, सुकून में वो भी रहेगा। और टेस्ट के लिए आप नया कप्तान बनाओ, नया सेटअप लाओ और नए प्लेयर्स लेके आओ, बिकॉज वी नीड टू बिल्ड अ टेस्ट साइड। तो जब इसको इन्होंने कहा कि जी आप जो है मतलब स्टार्टेड गिविंग हिम इंडिकेशंस कि जी अब टाइम आ गया आपका,
So, like, I was totally shocked the day when they announced that he's been sacked as captain for all 3 formats. I was shocked when they said that he's been dropped from the team as a player. That to me was like totally unjustified. और मुझे नहीं समझ में आया कि यार क्यों आप ये हरकत आपने की है, क्या जरूरत क्या थी आपको करने के लिए। और देखें, बात वही होती है अनीस कि अगर आप गलत डिसीजन लेंगे ना कभी लाइफ में और किसी का ज्यादती आप करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको चीज नजर आती है लाइफ में आगे चल के। एंड आई थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट will pay for this mistake sooner or later as we move along, क्योंकि ये गलत था, आपने ज्यादती की उसके साथ। वो कोई ऐसा कोई आसमान नहीं गिरा था कि अगर आप श्रीलंका से T20 सीरीज हार गए थे, कोई मसला नहीं था। ही वॉज डूइंग वेल इन वन डे, ही वॉज, मतलब उससे पहले T20 सीरीज अच्छी चल रही थी। मिसबा ने जिस तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की है उसको हटाने का, इट्स बीन रियली, आई मीन, सैड फॉर मी के पता नहीं क्यों वही वाली बात है कि आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ियां मार रहे होते हो। लेकिन वही मसला है ना अनीस, लाइक आई सेड अर्लियर, कि हमारे क्रिकेट में सबसे बड़ा इशू है वही है पर्सनल ईगोज, विम्स एंड फैंसीज। मुझे उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही, मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही, ये चीजें ज्यादा हमारे वहां होती है। तो आई थिंक सरफराज वाज हार्ड डन, बड़ी ज्यादती उसके साथ की गई है, क्योंकि 11 सीरीज एक टीम मतलब जीते, चाहे वो कहीं भी जीते, किसी के खिलाफ भी जीते। 11 सीरीज इज अ बिग अचीवमेंट टू गो अनबीटन फॉर 11 मैचेस, प्लस इन सम 34 मैचेस or something like that, he won 28 मैचेस, 29 मैचेस, मतलब 34 में से कोई कुछ रिकॉर्ड होता है यार ये। तो अगेन वी डिडंट गिव रिस्पेक्ट टू हिम, एंड आई थिंक वो हमें नजर आ रहा है वो चीज के वी आर नॉट श्योर अबाउट अ T20 टीम। हालांकि मजे की बात यह है कि जो हमारे प्लेयर्स अवेलेबल है इस वक्त, आई थिंक वी कैन मेक अ वेरी गुड T20 टीम, वेरी फॉर्मेडेबल T20 टीम। लेकिन बिकॉज ऑफ रॉन्ग डिसीजन वी आर नॉट श्योर इवन नाउ कि हमारी T20 का जो फाइनल लुक क्या होगा हमारा वर्ल्ड कप में। Right. And my question, you feel that it is India's tournament to lose? Virat Kohli or Yes, Rohit Sharma for the definitely. captain World Cup? Virat Kohli or Rohit Sharma? देखिए जी, T20 के बात ये अनीस के इस वक्त यू कांट मतलब मूव कोहली एज अ कैप्टन, सीधी सी बात है, मतलब आप क्या उसको बताएंगे। लेकिन हाँ, कोहली के लिए ये बड़ा सिंपल है कि आई थिंक कोहली खुद भी एक ऐसा कैरेक्टर है कि अगर वो ये वर्ल्ड T20 नहीं जीत पाए इंडिया के लिए, आई डोंट थिंक देन ही विल कंटिन्यू एज वाइट बॉल कैप्टन, आई डोंट थिंक सो, ही विल स्टेप डाउन हिमसेल्फ। लेकिन ओवरऑल एज अ टीम अगर मैं देखता हूँ इंडिया को, आई थिंक इंडिया के पास बेस्ट पॉसिबल साइड है। उनके अपने होम कंडीशंस हैं, ठीक है, आप कहेंगे जी वो आईसीसी का टूर्नामेंट है तो आईसीसी पिचेस बनाता है, वो सब ठीक है। लेकिन जो एनवायरनमेंट होता है ना आपका, जहाँ आप खेल रहे होते हैं, crowd. दैट क्राउड, और वैसे भी जो पिचेस पे आप खेल रहे होते हैं, भाई आईसीसी भी इंडियन पिचेस को ही बनाएगा ना, मतलब वो इंग्लिश जी, पिच नहीं जी, लेके आएगा। तो आई जी, थिंक दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक इंडिया के लिए तो सिनेरियो सेट है। आई मीन इफ दे मेक द राइट सिलेक्शंस, दे मेक द राइट choices, there's no way I see कि इंडिया को कोई टीम हरा पाएगी इसमें वर्ल्ड T20 में, because they're strong in every department. They've got good strong pace bowlers for T20 cricket, they've got good spinners, they've got good all-rounders, they've got good hard-hitting batsmen, they've got polished talent. So I think India, like you said, very rightly said, it's India's cup to lose now. Well, ladies and gentlemen, boys and girls from India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, and wherever you're going to see this show, we've had a fantastic last hours hearing Wahid Bhai, his analysis, his views, and hard facts. Thank you so much, Wahid Bhai, for your time. Most We welcome. really appreciate. Most welcome, Manish sir. And Most inshallah, welcome. we will, agar Allah ne chaha, to we'll catch up soon once again. Inshallah, Miss. Inshallah, Miss.